database system, which is CSPC 25. And okay, let's wait for 2 to 3 minutes others to join, and we will be start. Okay, so let's start. Okay, for the next 5 minutes, I request probably each and every student to be enable your audio as well as video. After that, we will start discussing. So let's take 1 or 2 minutes to start, and I request each and every students to enable your video and audio, both. Please go ahead. I'm waiting for your response. So let's enable your audio and video both, because we are recording this class. Each and every session we will be recording, and we will be keeping these recordings in particular drive, so that during the semester or any time point and access the class discussion as a notes. Right. Good. So, okay, because we are starting this new semester, and for this semester, this whole teaching process will be based on online, right? I don't know how you have, what is your experience with the online classes in the previous semester, because previous semester we have actually adapted this online approach of classroom to somehow complete the remaining portion of the syllabus, to somehow complete the evaluation part, right? But in this semester, okay, so I request each student to disable audio, right? Because audio is creating little disturbance. Yes. Okay. So basically, this whole semester will be delivered via online by all teachers, whether it is for classroom discussion, whether it is for lab discussion, and whether it is for evaluation. So evaluation, do not think like that. What will be the approach for evaluation? How evaluation will be done? But yes, director sir has conveyed that you have to conduct examination online this time, right? The approach will be different. Each teacher will have different approaches, right? But whole this entire evaluation, whether it is mid semester 1, mid semester 2, end semester, or any quiz and assignment, everything will be engaged through some kind of tool or quizzes or any kind of, right? So basically prepare yourself for this kind of discussion, this kind of platform. We do not have any escape route this time, because we are in the situation where we will be engaging each and every activity through online, right? Each and every activity means seminars, your examination, your classrooms, your labs, each and everything will be delivered through online interaction. So I hope you're ready for that. Make yourself ready, make your laptop ready for that thing,
you should be preparing some kind of storage devices also to store the recordings. वैसे काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जो आपको, जैसे मैंने जो डिसाइड किया है आप लोगों के साथ कि हम इस किस क्लास के लिए जो डेटाबेस के लेक्चर्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो भी असाइनमेंट्स होंगे, जो भी क्लास नोट्स में जो शेयर करूंगा सिंगल 2 या 3 पेजेस के, वो आपके साथ उस गूगल ड्राइव में रखूंगा जो आपके साथ हमेशा हमेशा रहेगी उसकी लिंक. At any point of time you can access anything from that drive, so it is a storage for all and it will be available for basically at the end of till the end of this semester, so you can access anytime any resource from anywhere actually. तो जो भी चीजें होंगी उसमें हम फोल्डर क्रिएट कर लेंगे. क्लासरूम आई विल बी कीपिंग द अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ दिस क्लास आल्सो, वो मैं आपको उसी फोल्डर में प्लेस कर दूंगा. So attendance of each and every class will be captured and kept in a folder of that Google Drive option. Recording of the class will be kept in one folder. Class notes will be there. Assignments जो होंगे उनके जो आपके रिस्पॉन्स होंगे वो मैं वहाँ रखूँगा, और जो भी और एग्जाम्स होंगे सो वो सब चीज़ें आपको आपके एक्सेस के लिए वहाँ पे हम रखेंगे स्टोरेज पे, राइट. सो फ्रॉम माई एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग इन दैट गूगल ड्राइव, राइट. एंड आई एक्सपेक्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी अवेलेबल फॉर द क्लास. वीक में 3 क्लास होंगी, राइट. अभी तो हम इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं कि जो टाइम टेबल में असाइन किया गया है, जो टाइम स्लॉट उसी में करेंगे, और अगर हम एक इसको प्रॉपर तरीके से कर पाए कि एक टाइम स्लॉट पे जिसमें दोनों क्लास रहें तो वो भी ठीक है. अदरवाइज वी विल हैव दिस 6 लेक्चर्स पर वीक, 3 फॉर CSA, 3 फॉर CSB ऑप्शन, वो तो हमेशा है. एज फार एज लैब का सन, सो नेचुरली 2 लैब्स मेरे पास हैं, CS1 और CS3 की. बाकी क्लासेस दूसरे टीचर्स के पास हैं CS2 की आई थिंक, तो वो आप कोऑर्डिनेट करेंगे कैसे होगा. लैब डेटाबेस की लैब एंगेज करना आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट लैब इन दिस होल इंजीनियरिंग, बिकॉज उसमें असाइनमेंट्स जो हैं वो आप SQL में करेंगे. SQL अपने सिस्टम में आपको रेडी करना पड़ेगा. मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हाउ टू डू अ टास्क, हाउ टू परफॉर्म अ क्वेरी, हाउ टू परफॉर्म एनी इंस्ट्रक्शन ऑन SQL एडिटर, राइट. तो वो हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली आपके साथ मेरे इंट्रैक्शन 2 ही होंगे, लेक्चर्स के लिए और बेसिकली जो भी एग्जाम्स वगैरह होंगे लैब्स के लिए होगा नेचुरली, राइट. सो आपको ये मेंटेन करना है कि क्लास में जो मेरी एक्सपेक्टेशन लेक्चर के लिए एटलीस्ट, कि लेक्चर में हम क्या करेंगे कि व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन सिंपली पोस्ट ऑन चैट बॉक्स. दैट्स वन वे, राइट. एंड इफ यू वांट टू हैव अ डिस्कशन वी विल टेक एट द एंड ऑफ द लेक्चर, क्योंकि आज तो मैं मेरे पास माइक है, दिस माइक आई एम हियरिंग. नेक्स्ट लेक्चर से आई विल बी हैविंग ओनली माइक्रोफोन, दैट्स इट. और आपके पीछे जो बोर्ड दिख रहा है आई विल बी मेकिंग दिस कैमरा लिटिल क्लोजर सो दैट हम इसको इजीली देख सकें. विजिबल अभी भी आई थिंक विजिबल है आप लोगों को, दिख रहा है लिखा बोर्ड पे, यू कैन नोट यस और एनीथिंग यू कैन कंफर्म. तो आई थिंक जो बोर्ड में अभी दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है आपको क्या लिखा है, कुछ दिख रहा है आइडिया? आई हैव टेकन अप ब्लर आ रहा है, ओके. सो लेट्स नेचुरली इसको मैं और मूव करूंगा. सो हम उस पोर्शन में ले जाएंगे जहां से केवल बोर्ड दिखेगा, दैट्स इट. उसके आउटर बॉडी में कुछ नहीं दिखेगा. सो इट विल बी मेक क्लियरर फ्रॉम माय एंड. और नेचुरली जब आपको मैं कह रहा हूँ कि मैं क्लास की वीडियोस को अवेलेबल करूंगा आपके लिए हमेशा के लिए, तो आप कभी भी सो इट विल बी लाइक सेल्फ पेस्ड क्लास, कभी भी आप पढ़ के देख सकते हैं. बट इंपॉर्टेंट ये है कि जब लेक्चर होगा तो आप क्लास यहाँ पर रहें, किसी भी फॉर्म में रहें. आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू बी एक्टिव सो दैट वी कैन एंगेज. अदरवाइज तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, वो तो अपना अप्रोच है. बट मेरा कंसर्न ये है कि सब लोग क्लास में अटेंड करें 1-2 घंटे का. और अच्छी बात ये है कि फर्स्ट हाफ में पूरे लेक्चर्स हैं आई थिंक CS1 के, CSA के, तो दैट्स गुड पार्ट. और कभी कोई स्टूडेंट कह रहा था कि सर वी आर हैविंग वेरी बिजी शेड्यूल, सो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. दैट यू हैव टू बी अलर्ट विद, राइट. बिकॉज आपको इस तरीके से सोचना है कि क्योंकि आई डोंट नो कि ये सिचुएशन कब तक जाएगी. जो हमारे पास जो इंडिकेशंस हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, लाइक IITs, IISc बेंगलोर, JNU, जो भी इंस्टीट्यूशन है, दे आर गेटिंग रेडी दिस फॉर दिस सिचुएशन फॉर 1 ईयर एक्चुअली. सो हो सकता है आपका पूरा आप सेकेंड ईयर में आ गए ना, हो सकता है पूरा सेकेंड ईयर आपका ऑनलाइन हो जाए. सो यू विल बी लूजिंग 1 होल ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग. तो इसमें आपको यू डू नॉट हैव एनी एक्सक्यूज. अगर आप सोचते हैं कि चलिए इसको टाइम पास करके निकाल लेते हैं तो लूज आप करेंगे. सो ये आप अपने मेंटल थॉट में रखिए इस चीज़ को कि you have to be prepared for this thing and you have to participate in it. अगर आप escape route ढूंढेंगे तो लूज आप करेंगे, बिकॉज
I'm not saying कि each and every teacher will engage this kind of interaction, online interaction, but जो भी teachers कर रहे हैं, जो भी teachers आपको approach कर रहे हैं कि okay, let's be in the class, let's be in the online class for that particular 1 hour or 2 hour or anything. You should be proactive enough to be participating, right? It is important to be available for the class, available with the class, available with the teacher, and जो भी आपको मिलता है वहाँ सब सीखिए, right? Because if you go for any shortcut or any basically option जहाँ से आपको क्लास में ना आना पड़े, that is also there because only few teachers will record your attendance. मैंने तो कर लिया है. There is a default there is a default extension जो automatic attendance record कर रहा है कि कौन सा student किस टाइम पे आया है, how much time he was there with the class. So that is one kind of approach कि हम करेंगे वो भी. और जो स्टूडेंट्स आएंगे तो आई विल बी स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग और अटेंड. आई एम नॉट सेइंग इट इज 75% इज मैंडेटरी, but I will be taking the attendance record for your evaluation. I'm not marking, I'm not basically applying this 75% constraint on attendance in this online class. But naturally, I will be engaging or collecting these records to evaluate at some point, at some stage, right? So please take care of this thought कि आपको क्लास में रहना है, right? किस तरीके से रहना है वो आपके ऊपर है और आपके लिए यूजफुल है. अगर आप केवल म्यूट मोड में रहना चाहते हैं, दैट्स ओके. फ्रॉम माय साइड इट इज गिवन दैट यू आर देयर इन द क्लास. वो हमेशा अपनी क्लास में भी होता है कि अटेंटिव तो हम कम ही होते हैं वैसे, बट अभी की कंडीशन में ये है कि यू आर हैविंग सम प्रिविलेज कि आप घर में बैठ के कर रहे हैं. हम तो डिपार्टमेंट आ रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, तो एटलीस्ट मेंटेन समथिंग कि घर में बैठे तो आप अटेंड करिए किसी पोजीशन में. इफ यू आर नॉट विजिबल, प्रॉपरली विजिबल, तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं, ऑडियो अपना म्यूट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं वीडियो. दैट इज अप टू यू. बट माय बेसिक थॉट इज कंसर्न इज टू बेसिकली you have to be there in the class. That's all. That's simple, right? As far as query, I already shared that कि आपको जब भी query होती है, किसी भी thought कोई clear नहीं कोई चीज, तो आप इमेज लिख सकते हो chat box में, और कुछ चीज डिस्कस करना है, we will take at the end of the class, right? Any and as far as assessment concerned, I have shared one in the Google Classroom of this class. I have shared one I think one page document जहाँ पे लिखा हुआ था कि हम इस पूरे सेशन में इस सब्जेक्ट में डेटाबेस में कितने एग्जाम्स करेंगे, कितने क्लासरूम लेक्चर्स होंगे और कितने पीपीटी से होंगे और असाइनमेंट किस टाइप के होंगे. तो आई थिंक इट इज क्लियर विद यू कि वो क्या चीजें थी. याद है आपको? एनीवन कंफर्म? ओके. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट वन पेज डॉक्यूमेंट. वो केवल इसलिए है कि इस पूरे सेमेस्टर में डेटाबेस की से रिलेटेड जो भी असेसमेंट होने हैं, एवल्यूशंस होने हैं, वो आपको वैसे मैं डिटेल्ड वे में दूंगा कि किस दिन होगा, वो आपको नेक्स्ट वीक में दूंगा कि कौन सा टेस्ट या कौन सा असाइनमेंट किस वीक में शेयर होगा, राइट? और जो डॉक्यूमेंट में मेंशन है वो ये मेंशन है कि जो भी असाइनमेंट्स प्लान्ड है वो 100 मार्क्स के हैं, राइट? तो वो किस तरीके से वो उसका करना कंपल्सरी है कि कल को एग्जाम नहीं होती फाइनल, तो आपके पूरे इवैल्यूएशन उन्हीं एग्जाम्स के बेस पे हो जाएगा. अगर कॉलेज कहता है कोई एग्जाम नहीं होती है तो आपको ऐसे ही असेस करना है, ठीक है? So with this thought, okay, let's start discussing the concepts and the subject, right? So in the previous semester also we have 1 or 2 hours class with you where we have discussed the basic concepts of database and database management system and everything, right? But in this section, in this semester, we will be touching upon each and every concept of data and database, right? So in this whole semester we will be discussing only all the concepts related to only 2 concepts. First concept is data, right? Though data term is a very small term and it is too obvious that we are getting some kind of discussion, some kind of interaction with this term data, but उससे और भी related concepts हैं, उसके बारे में बात करेंगे. And there is another term which is called database systems, right? Because this whole syllabus or this whole subject is basically is planned to uncover or open the various concepts, various methods, various approaches to design the database, maintain a database, right? And create a database. Because we are a computer science students,
Now, so it is our responsibility to have the basic idea to how to create a database. So suppose there is a situation given. For a particular situation or scenario, you must have idea, should have approach to create a database, right? So आपके अंदर, because industry point of view से, this database designer or database administrator is are basically true profiles which are highly paid. I don't know why. आप किसी अपने नोन लोगों से पूछिए जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो आपको क्लियरली कहेंगे कि किसी भी अक्रॉस इंडस्ट्री, चाहे ओरेकल कंपनी हो, चाहे और बेसिकली एडोब हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, किसी भी कंपनी में जाएंगे आप, तो डेटाबेस से जुड़ी हुई जो भी प्रोफाइल है, दोज प्रोफाइल्स आर हाईली पेड. आई मीन सीईओ, सीटीओ और जो भी लोग हैं एडमिन में, वो तो उनको तो मिलती ही सैलरी पैकेजेस, बट जो एक एग्जीक्यूटिव क्लास है, राइट, एग्जीक्यूटिव क्लास है, वो उनमें सब हाईली जो पेड जॉब है, इट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. व्हाई? राइट. सो दैट ये तो एक पार्ट हो गया कि ओके सर वो लोग हाईली पेड क्यों हैं, क्योंकि दे आर मैनेजिंग अ डेटा. बट so there is another person who is managing a front end server, there is another person who is managing the finance, तो उनको क्यों नहीं मिल रही? Why we are paying highest amount of salary to a person who is simply looking after a database server or simply looking after a data? So that is one thought you must be thinking of, कि हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कम लोगों को मिलती है इंडस्ट्री. अगर आप दुनिया की पूरे लोगों का वर्क फोर्स जो आईटी में काम करते हैं उनको रखें, so it is only 0.7 to 0.6% people who are working as a DBA, right? So it is again a strange thought कि इतने कम लोग हैं और इतनी हाईली पेड जॉब पे हैं, फिर मैं कैसे पहुंचूं वहां, राइट? तो एक चीज ये है, and basically it is again raising a question, why data is so important. I'm not saying about the data कि 1 GB, 2 GB, 3 GB, that I'm not talking about. वो वाला नहीं है, वो तो अलग पार्ट है. It is something related to different aspect. My focus is a data which is generated, which is captured into the system. जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो जनरली हमारा थॉट होता है कि डेटा इज समथिंग which is, data is a raw fact. Sometimes we say raw fact. Data is something which is unprocessed. Any detail which is not processed, we say it is a data, right? But why we are processing it? Why we are capturing a data? What is the need of capturing data? When we say that we have captured a data, आप हमेशा आपके कुछ सिस्टम्स कैप्चर कर रहे हैं, कुछ आप खुद भी जनरेट कर रहे हैं, लाइक इन फेसबुक, इन ट्विटर, वी आर पोस्टिंग समथिंग. So whenever we are posting a simple 1 line, 2 line text, it is kind of you are submitting a detail or any text or any basically information. It cannot be information. So any kind of detail which we are posting into a system, it will become information, from data to information. तो उसके पहले की स्टेज जो होती है जहां पर हम डिटेल्स को कैप्चर करते हैं, डिटेल्स को टाइप कर रहे होते हैं, वो उस स्टेज पे डेटा है, बिकॉज इट इज नॉट प्रोसेस्ड टिल नाउ, राइट? वंस यू submit into the system, it will become something else, because you have submitted, you have applied some kind of processing, right? So उसके पहले की स्टेज हमें समझना है कि why we are talking about data. जब हम कह रहे हैं कि data is raw fact, data is unprocessed form of information, तो जो वो raw है, processed नहीं है, तो आप उसको understand कैसे करेंगे? सर this is data. जब कोई भी चीज ऐसी है दुनिया में जो डिटेल्ड तो अवेलेबल है लेकिन वो प्रोसेस नहीं है, इट मीन्स वो सिस्टम में नहीं है, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम या कि आईटी सिस्टम में नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे कि सर ये जो है ये डेटा है? बिकॉज इट इज नॉट प्रोसेस, इट इज नॉट लिंक्ड, इट इज नॉट रिलेटेड विद ईच अदर. सो हाउ डू आइडेंटिफाई दैट समथिंग इज अ डेटा? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a detail which can be said that this is data? That is one second question you should be keeping care of. How to identify that any detail which is available, any detail which is mentioned, any detail which is in front of you is a data, right? So you should be taking care of it. ये हम कैसे करेंगे? Because जो भी हम चीजें देख रहे हैं इंटरनेट में, ये डेटा फॉर्म में नहीं है, it is in the form of information or maybe in the form of knowledge. Right? Clear है? I hope it is clear for you.
So whenever someone is asking you that what is data, तो डेफिनेशन तो आपको ऑब्वियसली क्लियर है, और उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली, इसलिए किसी ने कभी वर्ल्ड में नहीं कहा कि देयर इज दिस डेफिनेशन फॉर डिफाइनिंग डेटा टर्म. So data is something which is not captured in the system. Data is something which is not processed. क्योंकि जैसे ही आप सिस्टम में इसको कैप्चर करेंगे तो डेटा नहीं रहेगा, it will become something else. It will become database, right? So whenever we capture a detail, it will become database. Something which is not captured, it is not processed, it is called data, right? So जैसे आपने NIT में एडमिशन लिया हुआ, so जब आपने एडमिशन लिया, रजिस्ट्रेशन करवाया, आपका काउंसलिंग हुआ, उसके बाद वैसे तो काउंसलिंग के टाइम में ही आपका जो डेटा है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टम में कैप्चर हो जाती है, उसके बाद वो फ्लो होती रहती है, काउंसलिंग वाले सिस्टम से सीधे कॉलेज वाले में आती है, या कि कॉलेज वाले सिस्टम में आप एंट्री भी कराते हैं तो लिंकिंग होती है काउंसलिंग वाले डेटा से, वेरिफिकेशन होता है, राइट? सो वो तो ऑलरेडी डेटा से इन्फॉर्मेशन पोस्ट में आ गया है, पोजिशन में आ गया है. सो वी कैन नॉट से, बट अज्यूम करते हैं कि आप टीएनपीओ में जाते हैं कि किसी भी ऑफिस में जाते हैं जहां आप अपना डिटेल देखेंगे, सर माय नेम इज दिस, माय रोल नंबर इज दिस, राइट? सो इट इज नॉट समथिंग वी कैन से इट इज डेटा, बिकॉज अब हम कह रहे हैं कि टीएनपीओ में जब जाएंगे तो टीएनपी वाले पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट इज योर ईमेल आईडी एंड व्हाट इज योर रोल नंबर. नाउ वी आर यूजिंग रोल नंबर which is already generated, right? So roll number is something we can say is a information, because this roll number is generated based on the relation of various information and after some kind of processing, some kind of transformation. So maybe during the registration stage, you have filled a form into the academics blog, and academic blog have generated this unique roll number, right? So this roll number is generated based on the 10 or 15 details of yours, and they have given you this 6 or 8 digit roll number. So after getting these 10 to 15 details, they have generated this one single detail which is referred as the information, which is referred as the information. It is roll number. Roll number is your information. Similarly to roll number, we can have PAN number, we can have what is called Aadhaar number, anything. So whatever information we are getting after processing various details, and after processing it will generate some kind of smaller form of detail of yours, will be referred as information. So this roll number and these 10 or 15 details both refers to you only. So these two details, these 10 information, 10 details which are unprocessed, raw detail about you, and this one single roll number, both are referring to you, referring to a student, referring to an individual, right? So in one sense, these 10 details which we say is a data, and this one detail which we say as information, both refers to one same individual entity, same individual real world object or real world person, right? So difference is only is this middle position where we saying we are applying some kind of processing. That's the only difference. तो वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हमारे से रिलेटेड हैं या कि हम उनको यूज करते हैं to identify ourselves, to basically recognize ourselves, these are in the form of whether data or maybe in the form of information. So the precise definition of information is nothing but it is a processed data, right? So whenever we have 10 or 15 details, we can apply basic form of processing and generate one piece of information, one piece of detail which is referred as the information, right? So one small form of processing is applied. That's it. Like in case of your Aadhaar number, like in case of your PAN number, in case of roll numbers, we are simply asking you to submit some details in a form, and we apply simple form of abstraction and generate one piece of information, piece of detail, which is referred as information. वो easy to use, and that is one advantage we have. So why we are generating information? Because it is easy to use, right? So one typical example,
of information is your classroom notes. So whatever we are discussing, it is kind of a random thought, random discussion. But आप जब आप अपनी बुक में नोट करते हैं, वो अपनी एक आपने जो डिस्कशन में सुना, डिस्कशन में जो चीजें आपने कलेक्ट की, उनको आप एक अरेंज करते हैं थॉट प्रोसेस अप्लाई करके अपना, और उसको अप्लाई करके रिफाइन करके आप उसको नोटबुक में नोट करते हैं, राइट? So though here we are having 2 or 3 levels of processing. First you listen it carefully, then you have refined them. जो आपने क्लासरूम में सुना, आपने क्लासमेट्स के थॉट सुने या टीचर्स के थॉट सुने, मे बी बुक्स में पढ़े कहीं, और उसके बाद उन सबको कलेक्ट करके आपने उसको रिफाइन करके 2 या 3 लाइन्स में लिखा. कुछ लोग उसको और छोड़ लिख सकते हैं. Again, not going for 3-4 lines of paragraph. They are capable enough to write in only sentence or maybe keywords only, जिसको आप कहते हैं नोट, शॉर्टकट नोट, जो भी है, शॉर्टकट्स हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, रेफरेंस नोट्स हो सकते हैं. सी इट इज अप टू योर कैपेबिलिटी, हाउ मच कैपेबल यू आर टू रिफाइन दीज थॉट्स जो आपने सुने हैं, राइट? सो इट इज अगेन डिपेंड्स ऑन योर आइडिया, योर अप्रोच ऑफ रिफाइनिंग द inputs which you have received about a class, about a topic, right? But whatever you have captured in notebook, it is a form of information. Initially we have 30 minutes of discussion, we have 10 minutes of discussion, we have multiple inputs, and eventually हमने क्या किया कि उसको एक लाइन लिख दिया, सर बस हो गया. So this is your information. Now after recording each and every discussion of the classroom, of various books which we read, various discussion with my classmates, I have collected notes, right? And eventually जब सेमेस्टर क्लास में जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो नेचुरली आपने जो नोट्स रिकॉर्ड किए थे, नोटबुक में लिखे थे, हर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता. कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं 4 या 5. एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन व्हाट वी डू, आफ्टर लुकिंग एट द क्वेश्चन स्टेटमेंट, we call a procedure of human mind, जो उन आंसर्स को एक्सट्रैक्ट करता है जो हमने पढ़ा है या सुना है, लिखा है, राइट? तो आपके माइंड ने क्या किया था ड्यूरिंग दिस प्रोसेसिंग? क्लासरूम में डिस्कशन सुने, उसके बाद उनको आपने रिफाइन किया, फिर नोटबुक में नोट किया. नाउ योर ब्रेन इज हैविंग द इंप्रेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विच यू हैव नोटेड डाउन इन योर आंसर शीट, राइट? हो सकता है टीचर ने जो पढ़ाया है वो याद ना हो, बट आपने जो नोट किया है वो याद है आपको. ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू रिफर टू द इंप्रेशन ऑफ योर क्लासरूम नोट्स, जो नोट्स आपने बनाए थे. सो वी आर बेसिकली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन you are applying this information which you have kept in your notebook to answer a question, right? And आप इस तरीके से अगर रियलाइज करो कि जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा, उसके बाद जो आपने एग्जाम में जिन क्वेश्चंस के आंसर दिए, वो क्वेश्चन ज़्यादा समय तक याद रखते हैं, ना कि वो क्लासरूम नोट्स, ना कि क्लासरूम डिस्कशंस. सो क्लासरूम डिस्कशन इज योर डेटा, your notes are information. Now whatever you have answered during the examination for certain questions, it will be always with you, and that's why it is referred as a knowledge. So whatever you have written during the examination, right, it will always with you, it will retained, it will stays with you for a longer time, right? Because again we have applied some kind of processing. So during the examination, you have referred the impression of your notebook to answer a question. So you are applying the information for a purpose, for examination, to answer a question on the examination or scenario. So knowledge is the outcome, right? Knowledge is the outcome of this level of processing, and outcome is knowledge. So we have extracted, we have listened lectures, and after listening to lectures we have come out with classroom notes or notebooks, and then during the examination we have applied this knowledge information from notes to answer question. So whatever you have written in the answer sheet, it will become a knowledge, right? And it is again more abstract. आपने जो नोटबुक्स डेटाबेस एग्जाम के लिए आपने जो प्रिपरेशन करी, बहुत सारे नोट्स बनाए अपने पास, तो आप पूरा नहीं लिख पाते हैं वहाँ पे, भले ही एज इट इज पूरा क्वेश्चन आ जाए. तो जो आप एग्जाम में लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको बहुत सारा लिख सकते हैं कम पढ़ने के बाद भी,
बट ज्यादातर में होता है कि हम बहुत सारा पढ़ते हैं बट लिख कम पाते हैं, बिकॉज अगेन वी हैव अप्लाइड सम काइंड ऑफ refinement process. Sometimes it is referred as refinement. For some student it is referred as extraction, कि जो इतना पढ़ के जाते हैं और इतना लिख के आते हैं. So again it is again with the capability of individual कि वो कितना पढ़ सकते हैं और कितना उसको elaborate कर सकते हैं. तो कुछ लोग इस स्टेज में refinement यूज करते हैं कि जो मैंने पढ़ा उसको और मैं abstract, क्योंकि स्पेस कम है, टाइम कम है, 3 घंटे का टाइम है. So let's precise it, answer precisely. और कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास दूसरी पोटेंशियल होती है कि जो मैंने थोड़ा पढ़ा है उसको मैं और ओवरलैप करता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि वो क्लासरूम नोट्स का इंप्रेशन उनके पास होता नहीं है, तो वो उस डिस्कशन को याद करते हैं जो टीचर्स ने क्लास में पढ़ाया, विच वॉज इन द डेटा फॉर्म. इसीलिए उनके आंसर्स कैसे होते हैं वो हमें पता होता है, राइट. सो दैट विल बी बेस्ड ऑन बेसिकली योर रिकॉलिंग पावर, कि आपका जो माइंड आपने कैसे ट्रेन किया उसको, कि आप क्या उस नोट्स को रिफर कर पाते हैं जो इंफॉर्मेशन फॉर्म में था, या कि आप जो ने अगर नोट्स बनाए ही नहीं थे तो फिर आप पुराने एक स्टेप और जाते हैं जहाँ पे जो डेटा फॉर्म में था, जहाँ पर उस टीचर के रेफरेंसेस याद आते हैं, किसी दोस्त ने कभी बोला था. तो वो सब चीज़ें होती हैं कि आपके आंसर शीट में या आपकी नोटबुक में लास्ट पन्ने में जो आप कचरे जैसा लिखते हो वहाँ से रेफर करते हैं. सो राइट, सो इट इज़ बेस्ड ऑन योर रिकॉलिंग पावर, कि हाउ यू ट्रेन योर सेल्फ, हाउ यू रिकॉल द फैक्ट्स, कि किस स्टेज से रिकॉल करेंगे इमीडिएटली प्रीवियस स्टेज से, कि एक और स्टेप पीछे जाएंगे जो क्लास में से, राइट. एंड दिस रिकॉलिंग पावर, दिस रिफाइनमेंट, सो बेसिकली रिकॉलिंग इज बैकवर्ड 2 स्टेप एंड रिफाइनमेंट और एक्सट्रैक्शन इज फॉरवर्ड प्रोसेस. तो अगर मैं ह्यूमन को रखूं सेंटर में स्टूडेंट को, तो उस केस में वी आर हैविंग 2-way प्रोसेसेस, फीड फॉरवर्ड एंड फीड बैकवर्ड, राइट. और दिस इज हाउ बेसिकली if you met any individual who basically qualifies UPSC, because in India UPSC is considered as a toughest examination, right. तो उसमें और आप में, आपकी प्रोसेस में, प्रिपरेशन में डिफरेंस इतना है, they used to note lot of things. बहुत सारा बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों से पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बाद वो बहुत सारे नोट्स बनाते हैं. सो मेकिंग नोट्स इज नथिंग, प्रिपेयरिंग योर इंफॉर्मेशन. समटाइम्स इट इज बिकम नॉलेज ऑल्सो. जब आप बहुत सारा पढ़ते हैं और अपने ही नोट से एक और नोट बनाते हैं, then it means you are creating some kind of knowledge before appearing to the examination. तो यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जिसमें सिलेबस का कोई आउटलाइन नहीं है फिक्स. जैसे हमारे केस में है कि फॉर ईच सब्जेक्ट वी हैव 5 चैप्टर्स, for each course we have some topics defined. But in case of UPSC exams, civil services, there is no limit of syllabus because it is expanding. अगर आप हिस्ट्री ने आपने वहाँ पे हिस्ट्री प्रेफर किया है यूपीएससी एग्जाम में, तो हिस्ट्री आई डोंट नो कब से शुरू होगी और उसमें डेली का डेली तो ऐड हो ही जाएगा, इट विल बिकमिंग हिस्ट्री. सो एक्यूमुलेशन इज ह्यूज. सो वहाँ पर एक ही अप्रोच काम होता है. जैसे हमारे में तो क्लियर है कि सिलेबस है इतना और 30 लेक्चर्स हैं और 5 चैप्टर्स हैं और इतने टॉपिक्स हैं. वहाँ पर ये चीज़ नहीं है. सो व्हाट इज द पॉसिबल अप्रोच फॉर देम? दे सिंपली लिसन टू द टीचर्स ड्यूरिंग द क्लासरूम्स. They prepare first hand notes, and during the revision they prepare the second level notes, and these second level notes are nothing but the knowledge in their case, not ours. हमारे केस में तो ये कि हम सुन रहे हैं, जो भी चीज़ समझ में आया उसको रिफाइन करके लिख रहे हैं, उसके बाद उसके एग्जाम में यूज कर देंगे, बस खत्म. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को याद रखें तो इंटरव्यू में काम आ जाएगा. जब आप बेसिकली प्लेसमेंट ले जाएंगे तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस. 1-2 क्वेश्चन डेटाबेस से भी आते हैं, तो पूछ के आप उनको रिकॉल कर लेंगे, बस इतना रहेगा, राइट. सो देयर आर 3 प्राइमरी स्टेजेस जो हम भी खुद भी रियल लाइफ में अपने डेली रूटीन में या मे बी डेली स्टूडेंट लाइफ में यूज करते हैं, कि होती हैं बाय डिफॉल्ट अपने साथ. इट इज टू ऑब्वियस बिकॉज आवर ब्रेन इज बेसिकली ट्रेन्ड इन सच अ वे दैट इट अप्लाइज दीज काइंड ऑफ स्टेप्स. तो अभी आप सुनते हैं, उसको यूज करते हैं, नोट करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं आगे जाके. सो there are these 2 stages of processing and 3 stages of outcome. So we start with data, then will become information, then it will become knowledge. तो ये obviously अपने ह्यूमन माइंड में हो रहा है, मैंने कुछ किए ही implicitly. But अगर मैं इसको सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू समझूं कि हाउ कंप्यूटर सिस्टम आर डूइंग दीज टास्क, राइट. सो लेट्स टेक दिस फेसबुक एग्जांपल और मे बी ट्विटर एग्जांपल, जो काफी क्लोज है. जैसे हम ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं, हमारा माइंड बिहेव करता है, और बेसिकली हम कैसे उस पीस ऑफ डिटेल को यूज करते हैं टू
मेक इट टू द नॉलेज। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया एग्जामिनेशन वाला सिनेरियो क्लासरूम का, वैसे ही फेसबुक में भी हो रहा है। अब फेसबुक में क्या है, डेटा अलग है, प्रोसेसिंग फेसबुक कर रहा है, उसको हम कैसे कंज्यूम कर रहे हैं और हमारे कंज्यूमशन को अगेन फेसबुक कैसे यूज कर रहा है नॉलेज के लिए, राइट। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एनालॉजी, अगेन वी हैव 2 लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, 3 लेवल ऑफ डिटेलिंग, राइट। जैसे अभी एग्जामिनेशन वाले सिनेरियो में हो रहा है, वैसे फेसबुक में हो रहा है। तो फेसबुक में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेज we as a user used to submit post, text post, image post, any post. So that whatever we are typing, right, it is naturally about something जो रियल लाइफ में हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज जो है वो स्पेस में हो रही है उसके बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, हो सकता है लिखते हैं कुछ लोग जिनको आइडिया है, बट जनरली ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली लाइफ, डेली रूटीन, वी यूज टू टाइप और राइट समथिंग अबाउट द event or the individual or anything which exists in the real life, real world actually। किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि whenever we type something, once we type something and post into the Facebook or Twitter or any kind of social media platform, it will become information, right। जैसे ही आपने उसको पोस्ट किया, so before posting it was a data because it was describing something about a real world, right। उसके बाद आपने उसको पोस्ट कर दिया फेसबुक में या ट्विटर में, so once you posted into it, submitted into it will immediately become information, right। now let's say कि कोई इवेंट है, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत का चल रहा है, चारों तरफ सब each and everyone posting something, so you posted a text along with that hashtag। अब हैशटैग इंसर्ट, आप हैशटैग इंसर्ट नहीं करोगे ना, तो भी आपका ट्वीट या पोस्ट उस हैशटैग से लिंक हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ फेसबुक इज प्रोसेसिंग इट। तो हम हैशटैग कर देते हैं तो कन्वीनियंटली वो उसके साथ लिंक हो जाता है। सो यूजिंग हैशटैग इज नथिंग बट हैशटैग इज इंफॉर्मेशन। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट कि हैशटैग इंफॉर्मेशन है जो एक तरीके से लिंक क्रिएट करती है अक्रॉस ऑल द पोस्ट, ऑल द ट्वीट्स पोस्टेड, राइट। जो भी जिन ट्वीट्स में वो हैशटैग यूज किया हुआ है वो सबको लिंक करेगा। So hashtag is nothing but hashtag is a macro. It is kind of a information which is created by someone to link all other things. So basically it is creating kind of information. जो भी tweets हैं जो उस hashtag को use करते हैं वो automatic उस एक part of information हो जाते हैं automatic। जैसे ही आपने hashtag use किया your post becomes information, right। तो ये हैशटैग वाला जो कंसेप्ट है इनिशियल टाइम पे नहीं था, ये कुछ सालों पहले शुरू हुआ है। पहले लोग फेसबुक में या ट्विटर में विदाउट हैशटैग ही पोस्ट करते थे और फेसबुक उसको उन ट्वीट्स को जहां पर एक की टर्म अपीयर हो रहा है, दे यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट दैट ट्विटर और मेक ट्रेंडिंग थिंग। हैशटैग वाला टीम अभी आया है बिकॉज हम एज ए यूजर अवेयर हो गए हैं। सो मे बी 4 years बैक नो वन इज अवेयर अबाउट दिस हैशटैग थिंग। 4 years और 5-6 years बैक कह लो आप। तो पहले क्या होता था कि यूजर्स ने पोस्ट किए, वर्ल्ड वाइड यूजर ने पोस्ट किया और फेसबुक उसको रियल टाइम में प्रोसेस कर रहा था, मिलियंस ऑफ पोस्ट, मिलियंस ऑफ ट्वीट्स, एंड दे विल ट्राई टू कम अप विद सम 10 or 20 frequently occurring keywords, or they say these are the trending thing, right। So after processing these millions of tweets which are in the form of information, they process it and they come up with these 20 or 10 or maybe 15 or 100 or 50 keywords which are trending, right। वो पहले होता था because user is not aware about this keyword thing, this hashtag thing, so Facebook process these information they post by users and they generate trending terms, and these trending terms are referred as a knowledge, right। naturally अगर फेसबुक ने ये जो टॉप 20 टॉप 10 कीवर्ड्स निकाले हैं वो किसी पर्पस के लिए निकाले हैं, प्रोसेसिंग अप्लाई करी है किसी पर्पस के लिए। सो ये इतना इजी नहीं है कि जो ट्वीट्स हैं उनको रियल टाइम में फेच करके आप उनको प्रोसेस करके और कीवर्ड्स निकाल लें, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। नेचुरली ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर सकते हैं अपने एंड पे कि हाउ टू डू इट, ऑल्दो फेसबुक इज ऑलरेडी डूइंग इट, बट यू कैन ऑल्सो टेक इट एज एन चैलेंज एंड सिंपल टॉपिक कंसेप्ट है, कोई भी एल्गोरिथम लगा के आप कर सकते हैं। So what is the outcome of why we are generating these keywords, trending keywords, right?
जो लोग बिजनेस में हैं वो इसको कर सकते हैं, जो लोग के पास बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं वो इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर सकती हैं कि विच कीवर्ड इज नाउ ट्रेंडिंग एंड लेट्स यूज इट, राइट, लेट्स यूज इट। अभी हम क्या करते हैं, कि बहुत सारे अब हम अवेयर हो गए हैं एज ए यूजर फेसबुक में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। सो वी यूज टू डू व्हाट, वी यूज टू यूज दैट कीवर्ड व्हिच इज पार्शली ट्रेंडिंग समवेयर। हम उसको हैशटैग को यूज करके अपने पोस्ट में वी कंट्रीब्यूट ऑन दैट कि लेट्स रेज समथिंग, लेट्स रेज अ वॉइस, राइट, एंड वी आर डूइंग दिस पोस्टिंग ऑफ हैशटैग इनटू आवर ट्वीट विद इंटेंशन कि कुछ इफेक्ट होगा उसका, राइट। सो वो अलग एरिया है, बट देयर आल्सो इन द फेसबुक आल्सो वी आर हैविंग दिस 2 levels of processing, 3 level of detailing, that's it, right? So basic thought ये है कि whenever we see something in the internet, when we something in somewhere, any detail about any entity, any event, anything, it will always in the 3 forms. Even in newspapers जो आप घर में आते हैं, उन newspapers में अगर आप इस तरीके से understand करें, so whatever detail is printed on the newspaper, it is in the form of whether data or maybe information or maybe knowledge, right? वो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, उस पर हमें नहीं आते कैसे करते हैं। जो लोग लिटरेचर में इंटरेस्टेड है उनको पता है कि व्हाई वी आर हैविंग अ टाइटल फॉर, हाउ बेसिकली यू कैन क्रिएट अ टाइटल फॉर अ स्टोरी ऑफ अराउंड 50 पेजेस, व्हाट इज द बेस्ट suited टाइटल फॉर योर नॉवल, राइट। सो ऐसा नहीं है कि केवल ये आपके नॉवल का टाइटल एक सिंपल कीवर्ड है, नो, वो आप ऐसे कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ना ही ऐसा है कि आपके एक नॉवल है जो 250 पेज का है, उसमें एक फ्रिक्वेंट सबसे ज्यादा टर्म आया उसको रख दो नॉवल का नाम, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। इट इज अगेन अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी, डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट, उसका अलग रहेगा, तो वहां पर हम नहीं जाते। बट ये सब चीजों में एनालॉजी है, और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सिस्टम में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डेटा से इंफॉर्मेशन, इनमें से नॉलेज, वही रियल लाइफ में बहुत सारी जगह हो रहा है। जहां भी आप चीजों को कैप्चर करके प्रोसेस करते हैं फिर अप्लाई करते हैं, तो उसमें यही 3 स्टेप्स हैं, राइट। क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, एक बहुत सारी डिटेल को लेके छोटा छोटा करते जा रहे हैं, और वो इतना कम्पैक्ट करेंगे कि वो इजीली यूज हो और इजीली बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब करें। जैसे हम हिंदी में बहुत सारी प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं नेचुरली। सो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोवर्ब्स? प्रोवर्ब्स का पर्पस यही है कि यू आर एक्सप्लेनिंग अ कॉन्टेक्स्ट बाय यूजिंग ओनली 4 or 5, 6 वर्ड्स। जब आप कोई प्रोवर्ब कहते हैं तो उसका पर्पस यही है कि आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, वो प्रोवर्ब अपने आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देगी, राइट। एंड ये प्रोवर्ब्स ऐसे नहीं बन गए हैं, प्रोवर्ब्स को किसी ने बनाया है प्रॉपर्ली। कोई वर्ड जैसे राइम आप लिखते हैं वैसे ही प्रोवर्ब्स रिदमिक होती हैं। सो उसका सो दीज प्रोवर्ब्स आर नथिंग बट दे आर नॉलेज, दे आर एब्स्ट्रैक्ट इन द नेचर, दे आर हैविंग लॉट ऑफ सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मीन्स मीनिंग्स, उसमें बहुत सारे होते हैं, एक प्रोवर्ब के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, राइट। सो यही है कि जब आप डेटा को इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं तो उसमें कुछ मीनिंग जुड़ती है, जब इन्फॉर्मेशन को आप नॉलेज में ले जाते हैं उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी मीनिंग जुड़ जाती है, राइट। सो इट इज अबाउट एडिंग सिमेंटिक्स, इट इज ऑल अबाउट। सो जब कह रहे हैं कि वी आर हैविंग 2 लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, सो एट ईच लेवल ऑफ प्रोसेसिंग वी विल ऐड सम मीनिंग इनटू दैट डिटेल, राइट। सो दीज आर 3 लेवल्स। there is a last level which actually I don't know discuss कैसे करें, उसको आप कैसे relate करेंगे, and the 4th level is called wisdom, right? So wisdom is something which I cannot explain, right? We can take example like who is having wisdom, how to retain the wisdom, how to generate wisdom into the human being, how to generate wisdom into the IT system or software system or any database system, right? It is almost impossible to generate wisdom into a machine or maybe by the machine, right? कुछ स्टूडेंट्स ऐसा इंप्रेशन बनाते हैं कि सर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ विजडम। नो, इट इज नॉट अ विजडम, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स, जो भी मशीन जिसमें AI बिल्ट है, एक मशीन लर्निंग बिल्ट सिस्टम है। लाइक अगर आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, एक एप्लीकेशन बनाया जो वेदर प्रेडिक्ट कर सकता है किसी भी लोकेशन का किसी भी टाइम पे,
Okay, on the 17th of August, 4 p.m., there will be a huge rain. So predicting a weather is nothing, but it is simply generating knowledge about simply using the temperature of the same location of 3 months, 4 months, or maybe 1 year back. So you are consuming the information, weather information, and predicting a weather forecast for the same reason, same place, same time. तो ये तो नहीं है. This is so it does not mean that your system is having some kind of wisdom. Wisdom is altogether thing, right? Predicting something, predicting weather, predicting sales, predicting the possible victory of possible election candidate is not a wisdom. It is something else, right? जो लोग गांव में बहुत सारे जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, आपके क्लासमेट्स से, मैं खुद ऐसी जगह से हूँ जहाँ पर बेसिकली विलेज से ही है मेरा रूट. तो वहाँ पर जब थोड़ी फनी सी बात तो नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब किसी की भैंस घूम जाती है तो वो कहते हैं कि ये भैंस आपकी इस दिशा में गई है और यहाँ से केवल 20 किलोमीटर दूर है, आप जाइए इस तरफ ढूंढिए, राइट? सो जो पहले की स्टोरी ये होती है कि ओके ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ पावर, some kind of supernatural power, supernatural capability to basically see or maybe the predict or maybe the outline or the spot something. I don't know. ये तो cosmic की capability हो सकती है कि without having any idea about the object, कि आप उसको बता दें कि ये साइज था भैंस का, ये थी, इतना वेट था, उसके बेस पे वो प्रेडिक्ट कर सकता है. So I don't know. It is almost impossible. उसको उस थॉट को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, बट ये पावर जो है ये these are not wisdom, right? तो आप ये सोचिए कि जब विजडम एक ऐसी चीज है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, एक आईटी सिस्टम में जनरेट नहीं कर सकते, देन हाउ कैन यू डिफाइन इट? सो जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, तो ये फोर्थ टर्म जरूर आएगा, विजडम. एंड पीपल हैव डिफाइंड इन सम वेज, राइट? सर विजडम ये होता है कि you can see your some features of someone. और कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि उसने जो कहा वही हो रहा है. तो अगर किसी पर्सन ने दुनिया में किसी 100, 200, 1000 लोगों के बारे में कहा है और परफेक्टली सही है, तो मैं कह सकता हूँ कि he is having some kind of power, capability, right? He is having this kind of wisdom कि वो exactly सही कह रहा है, right? So इसलिए हम उस लेवल के बारे में बात नहीं कर रहे कि हाउ टू अटेन दीज विजडम्स. ये पॉसिबल नहीं है, सिस्टम में एटलीस्ट नहीं पॉसिबल है. ह्यूमन बीइंग में हो सकता है कि दुनिया में कई लोग आए हों जिन्होंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है एंड दे आर हैविंग दिस कैपेबिलिटी टू डू सम अननेचुरल, सुपरनेचुरल, नॉट अननेचुरल, सुपरनेचुरल. So we are not talking about that. We are not having, though we are having supercomputers, but supercomputers are the systems which can do these बेसिकली बेसिक ऑपरेशंस जो बहुत सारे हो जाते हैं. जैसे अगर आपको ऐड ही करना है, एडिशंस ही करना है, मैथमेटिकल एडिशन ही करना है, लेकिन अगर आपको बहुत बड़े नंबर सीरीज का एडिशन करना है, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, तो टास्क तो आपका सिंपल है, बस उसकी स्केल बढ़ गई है, ऑपरेटर साइज बढ़ गया, ऑपरेंड साइज बढ़ गया है. तो सुपर नेचुरल सिस्टम्स जो बनाए गए हैं दुनिया में जहाँ पर भी हैं, चाहे वो यूएस के पेंटागन ऑफिस में है, जो सिक्योरिटी ऑफिस है उनका, चाहे जो लैब्स है फिजिक्स की, हिग्स एंड बोस लैब, आई थिंक दैट्स द नेम, चाहे वहाँ पर हो जहाँ वो बिग बैंग थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और चाहे कोई भी लैब हो, सैटेलाइट लैब हो, जो भी है, तो वहाँ पर क्या है, जो भी सिस्टम्स हैं, सो कॉल्ड सुपर कंप्यूटर, सुपर सिस्टम्स, दे आर डूइंग द बेसिक ऑपरेशन, और जो ह्यूज साइज में हो रहा है, बस, और कुछ नहीं. ऐसा नहीं कि क्रिएटिंग अ सुपर कंप्यूटर फॉर प्लेइंग अ चेस गेम means this system is having all kind of capabilities कि wisdom कर लेगा, predict, ऐसा नहीं है. They are doing the same repetitive, same basic thought operations in a huge manner. That's it, right? तो हमने जो systems बनाए आज तक, तो वो या तो बहुत सारे ऑपरेशन से डील कर रहे हैं या तो बहुत सारे डेटा से डील कर रहे हैं. दो ही तरीके हैं और कुछ नहीं है. जब आप चेस खेलते हैं, let's take example of playing chess with the online software system, जिसमें कहते हैं ना कि one side there is a human, other side there is a this computer system. Now, तो what do you see? मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर ऐसा कुछ चैलेंजिंग है. वहाँ पर तो ये रहा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में योर सिस्टम
इस तरह अगर ह्यूमन बीइंग बैठा है, इस तरफ कंप्यूटर है, तो दिस साइड योर कंप्यूटर सिस्टम और दिस चेस सॉफ्टवेयर कैन ओनली जनरेट ऑल द पॉसिबल मूव्स। उसके अलावा तो उसको कैपेसिटी और चाहिए भी नहीं। किसी जैसे ही आपने ऑपरेट किया अपने साइड से, उसके रिस्पेक्ट में जो उसकी पोजीशन थी, तो वो एक पॉसिबल मूव जनरेट करेगा और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन की तरफ मूव करेगा, दैट्स इट। तो ये तो आप एक ह्यूमन बीइंग में भी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ गेम में किसी भी पॉसिबल मूव्स को डिसाइड कर सकता है और जनरेट कर सकता है पॉसिबल मूव्स। आई थिंक तो यहाँ पर तो कोई चैलेंज नहीं है। सिमिलरली इन अदर सिस्टम ऑल्सो योर सिस्टम इज जनरेटिंग ऑल द पॉसिबल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन बाय टेकिंग दस डिटेल्स, राइट। और दूसरा पॉसिबल ये हो सकता है कि वो बहुत सारा डेटा आ रहा है उसके पास, उसको प्रोसेस करके छोटी चीज जनरेट कर रहा है। लाइक इन द केस ऑफ फेसबुक, मिलियंस ऑफ पोस्ट आ रहे हैं और आप उससे ट्रेंडिंग वर्ड्स निकाल रहे हैं, दैट्स इट। So you are basically capable to take millions of data and able to generate, able to process these millions of inputs into one single piece of data, which is called information, right? तो जो वर्ल्ड में सिस्टम्स हैं आज के टाइम पे, जिसको हम कहते हैं कि now we are having this advanced softwares for advanced kind of scenario, we can take care of any size of data for any length of user, anything। तो वो दो ही चीज़ों पे हैं, या तो वो मैथमेटिकली या अर्थमेटिकली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा है बट बेसिक थॉट पे ही है कि एडिशन ही कर रहे हैं, बस एन नंबर ऑफ वेज से कर रहे हैं, या तो आप बहुत सारा बेसिक ऑपरेशन है बट डेटा बहुत सारा है। वी आर हैविंग ओन टू पॉसिबिलिटीज इन मॉडर्न टाइम एटलीस्ट। पहले बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट जब हम कह रहे हैं कि वी आर हैविंग बेस्ट सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, हार्डवेयर सिस्टम्स, वी आर हैविंग ओनली टू पॉसिबिलिटीज अमंग सिस्टम्स, राइट। एंड द फोकस ऑफ आवर सब्जेक्ट, database subject, to talk about the various steps involved, right, to identify the data, its nature, its properties, and to create a database system. Only two focus we have, right? So that's why it is important to understand where we are having data and how to process this data and make into the database, and after that information, right? तो बिफोर दिस फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग जो अभी हमने डिस्कस किया कि दो हैं, पहले आप डेटा से इंफॉर्मेशन जाते हैं, फिर इंफॉर्मेशन से नॉलेज जाते हैं। तो हमारा अभी जो पोजीशन है वो इस प्रोसेसिंग से पहले है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डेटा, दिस बाउंड्री, राइट। सो बिफोर गोइंग टू दिस प्रोसेसिंग वेयर वी विल हैव दिस प्रोसेसिंग टू process this data into information, before this also we have slight operations, जहां पर हम कह रहे हैं कि जो दुनिया में डिटेल है, जैसे मैं अगर आप स्टूडेंट, जैसे आप एडमिशन लेते हैं कॉलेज में तो आपकी डिटेल कैप्चर होती है, फिर रोल नंबर जनरेट हो जाता है। तो रोल नंबर जनरेट हमें नहीं करना, हमें उसके पहले डिटेल कैप्चर करनी केवल। जैसे आप इस डेटाबेस क्लास में आए हैं तो वहाँ आपका रोल नंबर दिया हुआ है, नेम है, सेक्शन नेम है, राइट। तो उस स्टेज को हम कहते हैं वेयर वी कैप्चर ऑल दीज इंफॉर्मेशन, वेयर वी कैप्चर दीज डिटेल्स, राइट। These details are called database। अगर मैं CSA के सभी स्टूडेंट का डिटेल एक स्ट्रक्चर्ड या सिस्टमेटिक वे में रख लूँ, जहाँ पर मैं रखूँगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर सेक्शन नेम, योर फोन नंबर, योर ईमेल नंबर, एनीथिंग, email name, email ID. So wherever I capture all the basic detail about students of CSA, right, it will called database. So sometimes database is referred as a collection of data, naturally collection of data. Sometimes it is referred as a collection of related data. Why it is related? Because जो भी डिटेल आपने कैप्चर किए, एक तो वो सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल्स का है, और पहला दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वी आर कैप्चरिंग ओनली 3 फील्ड्स, नेम, फर्स्ट नेम, सेक्शन नेम। सो इट इज लाइक क्रिएटिंग क्लास। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास कहते हैं ना, सो क्लास इज नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाट वी रेफर एज। सो सिमिलरली इट इज इक्विवेलेंट टू क्लास एक्चुअली। सो डेटाबेस इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ similar kind of information of similar kind of objects, that's why। तो यहाँ पर बिकॉज डेटाबेस ये है कि कैप्चर करेगा कुछ,
तो हम कह रहे हैं कि डेटाबेस इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या सिमिलर काइंड ऑफ डिटेल्स ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जो है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब ये कि वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई इवेंट भी हो सकता है। जैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपके अकाउंट में एसबीआई अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है वो इस डेटाबेस में जा रहा होगा। अब जब ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उसमें हम 3-4 चीजें मेंटेन करते हैं कि ट्रांजेक्शन डेट, टाइम, एटीएम का आईडी एंड यूजर आईडी तो नेचुरली आपकी होगी। सो बेसिकली देयर आल्सो, सो व्हेन वी मेंटेन समथिंग it maintains for all occurrences of the same instance, that is one part, and it maintains the record of only specific fields, right? तो डेटाबेस जब भी मैं कोई टर्म यूज करूंगा तो आपके दिमाग में ये इंप्रेशन आना चाहिए कि देयर इज दिस कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स विद द सेम 3-4 फील्ड्स। ऐसा नहीं हुआ कि पहले रिकॉर्ड के लिए आपने 4 चीजें करी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, अदर नेम, ईमेल आईडी, और दूसरे के लिए 3 करी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके ईमेल आईडी। ऐसा नहीं। When we say data, it is a collection of same kind of records. Same kind of record means columns means first name, last name, email ID, and it will have same kind of students. So students ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक आपने डेटाबेस में स्टूडेंट का नाम लिख लिया और उनके सीनियर्स का नाम लिख लिया, ऐसा नहीं है। सेम काइंड ऑफ स्टूडेंट मतलब सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स इट विल बी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर। इट कैन नॉट हैव मिक्स ऑफ फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर के भी तो स्टूडेंट ही हैं, लेकिन नो, इन अ टेबल ऑफ CSA we'll have records of students of CSA only with 3-4 fields you define करेंगे, right? So this is the basic definition of database system. So now I think we are getting we have done with, let's take 2 or 3 minutes to finish the class, right? So we have come up with today class we have come up with the definition of database, information and knowledge, right? Now my question for today's class, I will be posting this question through, okay, next class is 10:30, so let's finish it. I will be posting the question also, and each and every student should be answering that question. Question is, why data is important, right? मैं ये क्वेश्चन आपको गूगल क्लासरूम में भी पेस्ट करके पोस्ट करूंगा आपको, और आपको रिस्पॉन्ड करना उसमें बाय हैविंग सिंपल 1 or 2 line statement. Why data is important. आप इसको एक ओपन क्वेश्चन समझिए, ऐसा नहीं कि एक सिलेबस के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं या कि अभी जो डिस्कस किया उसके हिसाब से। मेरा क्वेश्चन ये है कि why data is important, एंड आपको आंसर करना है विद 1 or 2 सेंटेंस। व्हाट इज योर थॉट ऑन इट, इस बेसिस पे कि इन रियल लाइफ और इन एनी वे ऑफ लाइफ, एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, why data is important. Data can be your health records, data can be your the weather information, कुछ भी हो सकता है, but why data is important, that you should be thinking of from the very first class, right? So with this question I'm closing today's class, and we'll join